Hi, welcome guys in my new video, and in this video I will tell you in detail about maths and computing branch. Along with this we will compare this branch with other colleges like in my college, that is IGD2W, in DTU, NSUT, IIT Delhi and NIT Calicut. I will compare the syllabus, placement and scope of this branch because I think still confusion remains after my first video on this branch, because I made this video only for IGD2W. Now let's compare this branch for all college students. Before starting the video, I want to tell you all that if you like my videos, if you have any, if your doubts are clearing, if you are beneficial by watching these videos, then please like these videos. Also comment that you really have some help by watching these videos, your doubts are cleared. Coming days when जैक दिल्ली का स्पॉट राउंड होगा एंड बहुत सारी चीज़ें होंगी, बट what are those things you should know before going in spot round. So I will make a video in spot round. So it's a humble request to you all, then please subscribe and press the bell icon so that आप notified हो जब भी मैं आगे वीडियो बनाऊँ. And there are so many things to talk about, so please like, share, subscribe. Thanks. So guys, let's talk on semester 1 syllabus and semester 2 syllabus of maths and computing in IGD2W. I am very fast here. I will only going to talk on math subjects because all computing subjects are almost similar. You all very know about it. So in semester 1 we have calculus first, which is of 4 credit, and it is the only single subject in semester 1 of mathematics. And in semester 2 we have calculus second and linear algebra. There are 2 subjects of mathematics and it is of 4 credit each. And this is a subject you can see programming tools for mathematics. It is also similar to mathematics subject, but it is a programming language, that is MATLAB. Only syntax change, or other topics are same, that is integral, differentiation, limits, etc. So it is of 3 credit and it's very easy guys, no need to worry about it. Let's see in detail that in calculus 1, calculus 2 and linear algebra what you have to study. So in calculus 1, 4 units and it is very similar to differentiation. I will say that calculus 1 is similar to differentiation that you studied in your 12th standard. Okay, that like first limits, continuity and IVP property, differentiability, Cauchy mean value theorem, convergence, tangent, normal, asymptote, curves, and in 4th unit we have maxima, minima, Lagrange method of undefined multiplier, etc. So just differentiation and with in detail, like you will study differentiation in detail, the theorems in detail and the curves in detail, etc. So there are many things. Okay, so calculus 1 में ये था. Calculus 2 I will say similar to integration. In first semester you will study differentiation and in second semester you will study integration in IGD2W. That is in some calculus 2 you have fundamental theorem of integral calculus, mu test, beta test, etc., Abel's test, beta gamma function, double integral, triple integral, Fibonacci theorem, rectification, purpose theorem, vector integration, line integral, work conservation, Green's theorem, Stokes theorem, Gauss divergence, etc. So just integration in detail, just that's it. And in linear algebra, I will say it's my method of saying. I am not saying that completely, just no. Linear algebra is similar to matrix and determinants you studied in your 12th standard. That's it. In unit 1, completely group theory. Unit 2, linear transform. Very interesting topic. You will enjoy it. Kernel, range of linear transform, nullity theorem, etc. And in unit 3, rank of matrix and eigenvalue, eigenvector, Jordan canonical form,
Unit 4 in IPS, that is inner product space, norms of orthogonality, orthonormality and positive refinements, etc. बहुत सारी चीज़ें गाइस, मज़ा आता है। बस सेमेस्टर 1 में थोड़ा 3 सब्जेक्ट पढ़ के मुझे थोड़ा फील हुआ था कि लाइक ज़्यादा ही हो गया, बट ठीक है। प्रोग्रामिंग टूल्स फॉर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैटलब में जो सिंपल प्रोग्रामिंग एंड मैथ्स दोनों मिक्स हैं। मैट लूप्स एंड ये सब दिखेगा आपको, एंड लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे कैलकुलस है एंड उसमें लिमिट्स एंड एक्सेट्रा, प्लॉट्स, कर्व्स, ज़्यादा मैथ नहीं है। थोड़ा थोड़ा आपको लीनियर अलजेब्रा और कैलकुलस का मिक्स दिखेगा मैटलैब में। वो इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत ही इजी सब्जेक्ट हो जाएगा। सो ये था सेमेस्टर 1 जो मैंने पढ़ा। एंड जो अब मैं आपको सेकेंड ईयर का दिखाती हूँ कि सेकेंड ईयर में भी क्या इतना ही मैथ है जो मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ा। फर्स्ट ईयर में इतना सारा मैथ पढ़ा, तीन नहीं, मैं तो 4 सब्जेक्ट लूंगी। 3 तो पूरे मैथ्स के 4 क्रेडिट वाले, एक प्रोग्रामिंग टूल्स इन मैथमेटिक्स जो कि बिल्कुल सिमिलर मैथ्स। सो क्या सेमेस्टर 2 में भी क्या सेकेंड ईयर में भी इतना सारा मैथ है? सो नो गाइस, यू विल बी हैप्पी बाय this. Guys, let's see what is the syllabus of second year maths and computing branch in IGTTUW, and you will be very happy by seeing this that in semester 3 we have only one subject of maths, that is discrete mathematics, जो कि सिर्फ आपकी ही ब्रांच में नहीं होगा, वो सभी ब्रांचेस में है, whether it's CSE, CSEI, etc. सब में। Only discrete mathematics and other subjects like data structure, software engineering, Indian knowledge system, IoT and application design, and जो interdisciplinary में हैं वो भी कंप्यूटिंग के ही सब्जेक्ट्स हैं। देयर नो नीड टू वरी कि आपको इसमें 2 हैं। मैं जब सिलेबस देखा था मैं बहुत खुश थी कि फाइनली सेमेस्टर 3 में बहुत कम मैथ है, बट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इतना ईजी नहीं होता, वो भी बहुत हार्ड ही होता है जैसा मैंने सुना है, बट ओके। 4th सेमेस्टर में भी जो ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड स्टैटिस्टिकल मेथड एक सब्जेक्ट है जो कि 5 क्रेडिट का है हमारा, जो कि CSE वालों को, CSE AI वालों को फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया गया था। एंड हम उस टाइम 3 सब्जेक्ट मैथ के पढ़ रहे थे, तो हमारे में ये एक 4th सेमेस्टर में होगा। एंड उससे अलग जो डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गो, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, आर्किटेक्चर, ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स एंड जो इंटरडिसिप्लिनरी, वो सारे के सारे कंप्यूटिंग के सब्जेक्ट हैं। इसमें ओनली ये प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स वाला एक मैथ का आएगा 4th में। सो इन कंक्लूजन, इन 3rd सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर in IGTTW maths and computing branch we have only 2 subjects of maths, that is discrete mathematics, and in 4th semester that is props and statistics. So guys, ये था। अब नाउ चेक करते हैं कि जो अब जूनियर्स हैं उनका कैसे होने वाला है फर्स्ट ईयर में। तो वेरी सिमिलर, सब सिमिलर है, मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का बिल्कुल सिमिलर है। अब सेमेस्टर का CSE का जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का, उनका अप्लाइड मैथमेटिक्स होता है जो कि सभी ब्रांचेस में होता है ऑलमोस्ट। अप्लाइड फिजिक्स हमने भी पढ़ा था, बट वो सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ा था। एंड जो इनका प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक होता है वो उनका 4 क्रेडिट का है। एंड आई वाज शॉक्ड हियर कि मैंने अभी देखा कि जो CSE का और CSE AI को फर्स्ट ईयर में प्रॉप्स एंड स्टैट्स पढ़ाया था वो 4 क्रेडिट का था, बट यू कैन सी हियर कि मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का 4th सेमेस्टर में जो प्रॉप्स एंड स्टैटिस्टिक्स है वो आई थिंक कुछ ज्यादा ही डीप होने वाला है, या तो वो 5 क्रेडिट का रखा है इन लोगों ने यहाँ पे, कोई नहीं। सो यहाँ पर हमने कंपेयर किया इन डिटेल IGTTW में मैथ्स एंड कंप्यूटिंग को विद अदर मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का सिलेबस कंपेयर किया इन फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के कितना मैथ पढ़ना होता है, एंड विद CSE भी करा। CSE का एंड CSEI गाइस सिमिलर है, आप खुद भी चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट पे जाकर। सारी ब्रांचेस का ऑलमोस्ट सिमिलर है, सबको सेम ही है, बट थोड़ा फर्स्ट ईयर में ज्यादा मैथ है। गुड टू गो। नाउ DTO की बात करते हैं। सो DTO का मैंने निकाला है यहाँ पे, ये रहा मैथ्स एंड कंप्यूटिंग का। मैं आपको दिखाती हूँ DTO क्या पढ़ते हैं ये लोग। सो देखिए, सेमेस्टर 1 में मैथमेटिक्स 1, फिजिक्स 1, केमिस्ट्री, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सेमेस्टर 2 में मैथमेटिक्स, ये ग्रुप 2 के लिए है। सेमेस्टर 2 में मैथमेटिक्स 2, फिजिक्स 2, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल साइंस।
सेमेस्टर 3 डेटा स्ट्रक्चर्स, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो कि हमारा भी है, मैथमेटिक्स थर्ड, प्रॉप्स एंड स्टैट्स जो कि हमारा भी है। भाई इनके तो वाट लगी हुई है, 3 सब्जेक्ट डाल दिए हैं थर्ड सेमेस्टर में, वो भी ओनली मैथ्स के। इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिजाइन, फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इवन सेमेस्टर का है एल्गोरिदम डिजाइन एंड एनालिसिस, रियल एनालिसिस, साइंटिफिक, जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया था वो उनका सेकेंड ईयर में है। ओके, एंड थर्ड ईयर में इनका ऑपरेटिंग सिस्टम, डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिक कोर्सेज हैं कुछ, डेटाबेस मैनेजमेंट डीबीएमएस है, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग। बाकी आई थिंक थर्ड एंड फोर्थ ईयर में इतना फिर मैथ नहीं होता। मुझे लगता है कि जितना हमें पढ़ा सकते थे वो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ लिया है। सो नाइस, एवरीथिंग विल बी नाइस। आई डोंट नो अबाउट थर्ड एंड फोर्थ ईयर, क्योंकि मेरे पास सिलेबस नहीं है सच बताऊं तो अभी, क्योंकि ये न्यू ब्रांच है यहाँ पे। अभी मैं आपको लास्ट में एक गुड न्यूज़ भी दूंगी, मे बी आप लोग हैप्पी हो सुन के उसे। सो एनएसयूटी की बात करें कि उनको क्या पढ़ाया जाता है मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में, इफ कुछ लोगों को लगता हो कि सबका अलग अलग होता होगा। सो देखिए, सेमेस्टर 1 में एनएसयूटी में मैथमेटिक्स 1 एज सिमिलर टू DTU, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक फाउंडेशन एक सब्जेक्ट है। एंड इन सेमेस्टर 2 they have mathematics second, environmental science, applied physics, discrete structures and data structures, very nice. So in semester 1 and semester 2 NSUT में 1 सब्जेक्ट हैं मैथमेटिक्स के, and in semester 3 they have engineering mathematics, database management, system design analysis of algo, computer architecture. Okay, so 1 ही सब्जेक्ट है इनका। and semester 4 में operating system theory, scientific, real linear algebra, applied linear algebra. So I am very happy here कि इन लोगों का जो 1 सेमेस्टर में, इस सेमेस्टर में ओनली 1 सब्जेक्ट है मैथ्स का, जो कि D2 में है 3 सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स के इन थर्ड सेमेस्टर भी। एंड आप अगर ये बोलो कि मैंने कंपेयर दिखाया नहीं इनका सिलेबस प्रॉपर, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। तो मुझे एक का मिला है मैथमेटिक्स 2 का। सो आप देख लेना यार, मैं अब थोड़ा जल्दी, तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। देखो इनका ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमारे में नहीं है, मल्टीपल इंटीग्रल, न्यूमेरिकल, प्रॉब्स, मतलब सब कुछ जो मैथमेटिक्स 1 एंड मैथमेटिक्स 2 है, उन सब चीजें आई थिंक मिक्स कर रखा है। जो कि हमारा सब्जेक्ट का जो नेम है वो टॉपिक के नेम से ही है, बट इनका जो है मैथमेटिक्स 1 में आई थिंक जैसे यहाँ पे मिक्स कर रखा है डिफरेंशियल इक्वेशन, मल्टीपल इंटीग्रल्स को, प्रॉब्स एंड स्टैट्स को मैथमेटिक्स सेकंड में डाल दिया। सो इस तरीके से होता है इनका, एंड हमारे में ओनली सब्जेक्ट का नेम ही पूरा होता है। ओके, अब लेट्स टॉक की इनकी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, एनएसयूटी की कंप्यूटर इंजीनियरिंग और मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में क्या डिफरेंस है इतना, मतलब उन्हें कितना मैथ पढ़ाते हैं और इन्हें कितना मैथ पढ़ाते हैं। सो सेमेस्टर 1 में देखो, जो मैथ्स एंड कंप्यूटिंग वाले ने मैथमेटिक्स 1 पढ़ी वही सीएसई वाला भी पढ़ रहा है। ओके, और बाकी सब्जेक्ट्स आप देख ही सकते हो सिमिलर है बिल्कुल। इनको भी सेकेंड सेमेस्टर में मैथमेटिक्स सेकेंड पढ़ाया गया है। थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स नहीं है, या थर्ड सेमेस्टर में नहीं है, फोर्थ सेमेस्टर में है, प्रॉप्स एंड स्टैट्स है फोर्थ सेमेस्टर में। प्रॉप्स एंड, ये मैंने IIT का निकाला था कि उनको कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं इन डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो देखो जो हमें पढ़ाए जाते हैं मैथमेटिक्स 1 कैलकुलस, मैथमेटिक्स सेकंड लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन, यार सब्जेक्ट सेम है इनके, देखो बहुत सारे हैं, बट आई एम नॉट सेइंग कि सारी पढ़ाई जाते हैं, क्योंकि ये जस्ट डिपार्टमेंट की बात थी। अब मैं आपको इनका एग्जैक्ट दिखाती हूँ कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग वालों को आपको समझ आ जाए तो। मेरा बीटेक इन मैथ्स एंड कंप्यूटिंग वालों को देखो, बेसिक साइंस में कैलकुलस, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो इफ डिपार्टमेंटल कोर्स में लीनियर अलजेब्रा एंड एप्लीकेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रॉब्स एंड स्टैट्स वाला है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है इनका, वेरी सिमिलर जो हमें पढ़ाया जाता है वही सब इन्हें, बट आई थिंक इनका ज़्यादा है। सो सोच लेना अच्छे से। एंड सीएसई का, ये भी IIT का है, सीएसई वालों का पढ़ाया जाता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गो, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो कि हमारा भी होता है, डिजिटल लॉजिक, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिजाइन, मिनी प्रोजेक्ट, प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, मशीन लर्निंग। इनका सिलेबस बहुत अच्छा है गाइस, वेरी नाइस।
अच्छा तो हमारा भी है, बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे हैं, देयर आर सो मैनी। अब मैं सबको पढ़ूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि सिमिलर है। अब लेट्स टॉक की एनआईटी। एनआईटी ये है एनआईटी कैलीकट, बिकॉज ओ सॉरी इट इज एनआईटी वारंगल। एनआईटी वारंगल का जो कि तेलंगाना में है, मैंने निकाला है सिलेबस। टॉक फर्स्ट ऑन बीटेक इन मैथ्स एंड कंप्यूटिंग वालों का सेमेस्टर 1 में कैलकुलस एंड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ओनली वन सब्जेक्ट ऑफ मैथ्स इन सेमेस्टर 1 विच इज ऑफ 4 क्रेडिट, एंड सेकेंड सेमेस्टर में इनका लीनियर अलजेब्रा, कंप्यूटर मैथमेटिकल फाउंडेशन, आई थिंक ये भी सिमिलर होगा मैथ से, एंड वही है। एक और है ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक्स एंड पार्शियल डिफरेंशियल। सो आई थिंक 3 है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हियर। 3 सब्जेक्ट्स हैं इनके मैथ्स के। एंड थर्ड सेमेस्टर में प्रॉप्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर्स, और सारे सीएससी वाले हैं। एंड फोर्थ सेमेस्टर में मैथमेटिकल एनालिसिस है, एंड बाकी सब सीएससी वाले सब्जेक्ट्स हैं। सो सिंपल है, नॉट सो मच बिग हियर। एंड ये यहाँ का इनका सीएससी वालों का है कि इन्हें क्या पढ़ाया जाता है, विच इज कितना डिफरेंस है। सो सेमेस्टर 1 में सीएससी वालों को लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, भाई एक ही में ही 3 है, विच इज ऑफ 3 क्रेडिट, वेरी नाइस। एंड नो only this subject. And semester 2 में integral, vector calculus, Laplace, forward transformation, and यही है। mathematical foundation of computer science एक ये कह सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर में props and stats, ये तो होता ही है सबका, statistical tool practice में भी ये भी हो। फोर्थ वाल सेमेस्टर में आई थिंक नहीं है, बट यार ठीक है, नाइस सिलेबस, मेरे अकॉर्डिंग तो ठीक है, बहुत सही है सिलेबस। सो गाइस मैंने आपको बहुत सारा बताया यहाँ पे। एंड एक और चीज, मैंने आपको डीटीयू का नहीं दिखाया है, सीएससी का कंपैरिजन नहीं दिखाया है, सीएससी का विद मैथ्स एंड कंप्यूटिंग के साथ। सो डीटीयू का फर्स्ट ईयर में देखो, इनका भी मैथमेटिक्स 1 होता है, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल वो तो होगा ही, है ना। और सेकेंड सेमेस्टर में इनका होता है मैथमेटिक्स 2, ओके। थर्ड सेमेस्टर में इनका होता है, इनका नहीं होता, थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं है। फोर्थ सेमेस्टर में प्रॉप्स एंड स्टैट्स, ओके। सो यार देखो, ब्रांच के नेम में मैथ्स एंड कंप्यूटिंग है, सो ऑब्वियसली होगा ही यहाँ पे आपको मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, मैथ्स से कितना ही भागोगे। किसी में ज्यादा होता है, किसी जैसे हमने डीटीयू में देखा, थर्ड सेमेस्टर में मैथ्स एंड कंप्यूटिंग के 3 सब्जेक्ट है, मेरे कॉलेज में 1 सब्जेक्ट है, एनएसयूटी के हर एक सेमेस्टर में 1-1 सब्जेक्ट है, एंड आईआईटीज में 2-2 सब्जेक्ट ऐसे ऐसे डाल रखे हैं। सो हर किसी का अलग अलग है, बट सब्जेक्ट वही है, सब चीजें वही पढ़ रहे हैं सारे लोग, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और इतना भी कोई टफ नहीं है। मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे, इसके लिए आपको कोई एडवांस लेवल की मैथ नहीं आनी चाहिए। टीचर्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे, मेरे कॉलेज में तो बहुत ही अच्छे हैं। मैं उन्हीं की वजह से कॉलेज जाती थी मैथ पढ़ने के लिए, मैंने कहीं से यूट्यूब वगैरह से नहीं पढ़ा, जो प्रोफेसर्स हैं उन्हीं से पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। एंड रियली मेरी उनसे पढ़ के बहुत हेल्प हुई, एंड मैंने उन्हें ही फॉलो किया था। सो आपको अगर मैथ्स एक नंबर से डाउट पूछा था एनसीईआरटी लेवल एंड जे लेवल, सो यार मेरे को भी कोई इतना ज्यादा मैथ नहीं आता, मेरे को भी इस ब्रांच से लेने से पहले इतना ही मैथ आता था। बस इतनी बात थी कि मुझे मैथ करने में मजा आता था, मुझे मैथ बहुत पसंद है, आप कह सकते हो ऐसा। मैं मैथ कर सकती हूँ बहुत टाइम तक, बहुत प्रैक्टिस कर सकती हूँ मैथ की। सो मुझे ये गुड टू ब्रांच लगी, दैट्स वाई मैंने ये चूज की। सो सोच लेना, अगर आपको मैथ पसंद है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको बेसिक लेवल पे आता है, सो नाइस, यू कैन गो इन दिस ब्रांच, दैट्स इट। सो हमने पूरा सिलेबस डिस्कस किया, एंड जो गुड न्यूज थी वो मैं आपको बताती हूँ कि IGTTW में, that is in my college, two new branches are introduced in this year, that is computer science with cyber security and robotics and AI, and जो अभी existing थी पहले होती CSE with AI, IT, AI ML, EC AI, mechanical, maths and computing, and now 2 new branches are also introduced. So इफ अब तो चॉइस फिलिंग आई थिंक क्लोज हो गई है फर्स्ट राउंड की, बट सेकंड राउंड में फिर से रीओपन होगी। इफ यू आर इन
इसके लिए मैं यही बोल सकती हूँ कि आपको अगर साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, आपको आगे उसमें अपना कैरियर दिखता है, एंड किसी को अगर रोबोटिक्स एंड एआई में इंटरेस्ट है, रोबोटिक्स पसंद है, तो आप इसमें जा सकते हो। बिकॉज मुझे नहीं पता इसका इतना, एंड ये मेरे लिए भी नई चीज़ थी जो मैंने देखी। मैं आपको इसका सिलेबस दिखा देती हूँ। दिस इज कंप्यूटर साइंस एंड साइबर सिक्योरिटी का। अब देखो, साइबर सिक्योरिटी है तो साइबर सिक्योरिटी पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स इसका सेमेस्टर 1 में प्रॉप्स एंड स्टैट्स है, अप्लाइड फिजिक्स है, पाइथन है, वेब डेव है, कम्युनिकेशन है। सेकेंड सेमेस्टर में अप्लाइड मैथ्स है, एनवायरमेंटल साइंस है, ओप्स है, साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस एंड सॉफ्ट स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। सो फर्स्ट ईयर का तो सबका सेम होता है, कोई इतना डिफरेंस नहीं होता। रोबोटिक्स का भी आप देख लो यार, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस सेकंड सेमेस्टर में इनका इंट्रोडक्शन टू रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन आ गया है। अब देखो, जैसे मेरी न्यू ब्रांच है, मैं सेकंड ईयर में आई हूँ, सो कॉलेज ने अब सेकंड ईयर का सिलेबस डाला है, सो मेरे पास अभी थर्ड एंड फोर्थ ईयर का नहीं है, क्योंकि इट्स अ न्यू ब्रांच ईयर। ऐसे ये दोनों भी न्यू ब्रांच है, तो इनका ओनली फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। एंड जब आप सेकंड ईयर में आओगे मेरी तरह, तब आपको सेकंड ईयर का सिलेबस पता चलेगा, सो सोच लेना लेने से पहले। इस वीडियो में सिलेबस को हमने कंपेयर किया। इफ़ मैं प्लेसमेंट को भी करूँगी तो बहुत लंबी हो जाएगी, बिकॉज मेरे को थोड़ी बहुत डिटेल बताना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे बहुत डिटेल में सबको एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है, दैट्स वाई मैंने सब कुछ आपके लिए निकाला था, सब, ताकि किसी को भी कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एंड इस ब्रांच में आपको मैथ्स प्लस कंप्यूटिंग दोनों पढ़ना होता है, इक्वलाइज होता है। मैथ्स को आप इस ब्रांच में मैथमेटिक्स भी पढ़ते हो, कंप्यूटिंग भी पढ़ते हो, सो ये मत सोच के चलना बस मैथ्स ही मैथ्स पढ़ते रहोगे, ऐसा नहीं है। मैथ्स भी पढ़ना होता है, कंप्यूटिंग भी पढ़नी होती है, सो देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट। और ये सब सिलेबस था, आपको देख के इफ समझ आया हो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इन लास्ट, इफ आपको समझ आया हो सिलेबस का एनालिसिस इन जैक दिल्ली कॉलेजेस, IIT दिल्ली एंड NIT वारंगल, सो please like this video, comment that you really understood what I want to convey here, and for the upcoming very crucial and very essential videos जो कि बहुत important info होती है जो मैं आपको देती हूँ, बिकॉज जब मुझे ऐसी इन्फो चाहिए थी तब मुझे कहीं नहीं मिली यूट्यूब पे, एंड दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस काइंड ऑफ वीडियो, सो डैट इफ़ कोई ऐसा है जिसका कोई बड़ा भाई बहन नहीं है, जिसको कोई नहीं बता रहा कि क्या बेस्ट है क्या नहीं है, उसकी हेल्प हो सके। सो इफ़ आपको समझ आ रही है मेरी बात जो मैं आपको बता रही हूँ, सो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब एंड प्रेस द लाइक आइकन, सो डैट आप तक ये आगे जो मैं बनाऊंगी क्रूशियल वीडियोस, वो आप तक जल्दी पहुंच सके, एंड यू विल गेट बेनिफिट अर्ली। बिकॉज कुछ ऐसी वीडियोस भी होंगी जिसमें कुछ टाइमलाइन होगी, आपके हाथ से वो टाइमलाइन चलेगी तो आप क्या सोचोगे। सो गाइस दैट्स इट जो मैं आपको बता सकती थी इसके लिए। एंड प्लेसमेंट रिगार्डिंग जो वीडियो है एंड स्कोप रिगार्डिंग फ्यूचर स्कोप इस ब्रांच का, वो मैं इन द नेक्स्ट वीडियो बताऊंगी जो मैं इसके बाद बनाऊंगी, बिकॉज नहीं तो ये वीडियो ऑलरेडी इतनी लंबी हो गई है और भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो दैट्स इट, एंड वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, बी ट्यून्ड एंड प्रेस द लाइक आइकन, शेयर दिस वीडियो, comment if you really helped by this video, comment if you really have some benefit by watching this video, and once again thanks for watching, bye bye.